Hello, well wishers. I hope you all must be doing good and wish you all a happy time. As you know, in my previous videos, I have mentioned that um, I always try my best to help, to guide the teenagers, especially and in between the age group of you know 10 to 22. So today I'm going to discuss about certain books, and my subsequent videos will be on my collection of the books. So, as I have mentioned in my previous videos, that um, make the sweat as your ornament and make the books as your best friends. So today I'm going to show you what kind of books I have collected and I'm still collecting. So let's start with spiritual books, because um, as I think I have told in some of the videos, I do believe in the Almighty, and just like I do my rituals in the morning, getting up at 5 a.m., 5:30, uh, do my rituals. I pray for the whole world, and so first I'll tell you what kind of spiritual books I have, and then I'll go to the. I'm not going to collection of academic books, but yes, I'll talk about the motivational books. I'll talk about books in economics, management. Um, no, I'm not going to tell you about the books I have in IT, because that's my profession and I don't want to discuss all these things for now. But yes, so let me show you something, which what kind of books I have. It's a massive, uh, just getting it here. Even if you cannot, you will not be able to see me. Look at this, okay? And oh, uh, I just have to remove. At least I can show my face. So, and uh, I'm going to talk about a little bit on all of these books, and it's not only those books. I have also some more books, and you can see all this. So, yeah, most of the books in these are from Bibha Patnaik, and on the top of it, it's the best book, which is Bhagavad Gita and Ramayana. So, uh, why I've collected Dr. Patnaik's books, even if I follow him on YouTube, Twitter, and I read his blogs also. I have contacted him over the email, and I'll make a separate video on him, why and how I came to know about him, and why I bought all those books. Okay. Now, first of all, um, every human being, every human being should read the spiritual books. Why I'm saying, because it teaches us a lot. As let me tell you very frankly, when I was doing my MBA, and I was watching Dr. Vivek Vindra's YouTube videos, and once I was in ISKCON Mumbai, I saw his videos playing near the shop, bookshops.
bookshop. So I stood there for 5 minutes and just listened to him. So one thing he told that ये जो भगवत गीता है वो MBA का सबसे बड़ा किताब है, सबसे बड़ा किताब है वो इसलिए, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन भगवत गीता बुक, एनी जिस भगवान को आप मानते हैं, यू टॉक अबाउट बाइबल, कुरान और महावीर जैन की जो किताब हैं, या फिर भगवान बुद्ध की किताब है, या फिर हमारे गुरु नानक की जो गुरबाणी, ये सब किताबें हैं, ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और ये तो ऐसा है कि ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। So what I'm going to advise you the guys, and believe me, I'm a firm believer of Almighty from my childhood, and I'll also describe certain things in my subsequent videos why I do believe in Almighty. And so बचपन से मुझे दादा दादियों से ये सब कहानी सुनने के लिए मिलता। इनफैक्ट मैं जब बचपन में घर में था, गांव में था, तभी मैं वो रामायण और पुराण सब है, भगवत महापुराण, ये सब पढ़ के मैं दादा दादियों को सुनाता था शाम के टाइम में। सो वहीं से मुझे रामायण, महाभारत और इन सब के बारे में, पुराण के बारे में, और हमारे तो जो उड़ीसा में है जगन्नाथ जो पीछे हैं सो उनकी तो जगन्नाथ साहित्य के ऊपर मैं कभी कुछ पढ़ ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज उतना बुद्धि भी मुझ में नहीं है। उसको पढ़ने के लिए बहुत आपको बुद्धि चाहिए उसके लिए। और मेरे जो यंगर ब्रदर हैं, he is PhD in civil engineering and also a PhD in philosophy kind of thing. He has a large collection of books on the philosophy. So, and he is a guy who can stand in front of thousands of people and can talk up to 3 hours in English and Hindi, in Sanskrit, all those कोट वोट करके बहुत वो प्रवचन देते हैं। सो मैं उतना भी नहीं हूँ, मैं उतना तक नहीं गया हूँ। इनफैक्ट मैं भी संस्कृत जानता हूँ, पढ़ता हूँ, और कभी कभी उनकी जो वो छोटे छोटे श्लोक वर्णना भी करता हूँ इसमें। सो इंसान को हमेशा स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर थोड़ा बहुत 24 घंटे से थोड़ा बहुत वक्त गुजारना चाहिए। इट गिव्स हैप्पीनेस, इट गिव्स यू व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर टायर्ड, व्हेन यू आर, आप जब परेशान होते हैं तो याद करते हैं नहीं, सो उससे हमारे मन को शांति मिलती है। और एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज मैं कोई guru और ये सब नहीं हूँ। So let me explain and what kind of books. So let me start from here. This is a small book which is on yoga, and I'm going to make videos on yoga and I mean in subsequent videos. But let me finish my collection of the books. And the funny thing is, my son always says, and whenever I, tell him that, why don't you read all those books which I have? So वो कहता है कि मुझे पता है कुछ लोगों को शौक है किताब रखने में। मैं बोला रखेंगे तभी तो एक ना एक दिन नज़र उसके ऊपर पड़ेगा और उसको कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। और किताबों से जो आपको ज्ञान मिलती है, जो आप में परिवर्तन होता है,
वो कहीं से भी नहीं होता है। आई मीन यू डोंट बिलीव, मुझे आप एक शांत जगह पे छोड़ दीजिए समंदर के किनारे, क्योंकि आई लाइक नेचर इन लॉट, एंड एक गार्डन में छोड़ दीजिए जो जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, या फिर समंदर के किनारे छोड़ दीजिए, वहाँ पर मैं दिन भर बैठ के आधी किताब पढ़ लूँगा, वो है। बट स्टिल आई मीन हमारे लाइफ में हमें टाइम मिलता है। सो मैं छोटी सी जैसे योगा से शुरू किया और भगवद गीता और रामायण से शुरू किया, ऐसे ही ये एक छोटी किताब है, इसको भी मैंने पढ़ा है, प्रहलाद महाराज के दिव्य संदेश। उसके बाद छोटी छोटी बुक जो है वो है जैसे कि उपनिषद बाय सी राजगोपालचारी, and again I have another Ramayana book also by C. Rajagopalachari. And then I bought some books. I mean, I have told you in my previous video, when I started getting up in the morning at 5 o'clock, what to do. So all those, meditation, all those things. I used to watch, कभी तो हमारे मुंबई के गणपति दर्शन हमें लाइव टेलीकास्ट किया जाता है टेलीविज़न में, कभी कभी शिरडी साईं बाबा की भी किया जाता है, वो भी हम देखता हूँ। और मॉर्निंग में बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें सब बहुत कुछ दिखाते हैं। एक उनमें से इस्कॉन है, और इस्कॉन की इसीलिए मैं देखता हूँ बिकॉज वो दे डू एडिटिंग very nicely with beautiful songs and super blissful songs, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से एडिटिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं उनके वीडियो को। सी एडिटिंग इज़ वन पार्ट इन द वीडियो। पता नहीं मैं आगे जाकर कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि एडिटिंग में एक मेस्मराइज टाइप का होता है आदमी, इतनी अच्छी तरह से एडिटिंग लोग करते हैं। सो देखते हैं। सो let me start with whatever I have now. So after my Bhagavad Gita and Ramayana, I have this one. So इसके ऊपर भी और भी कुछ किताबें हैं मेरे पास, और मैं कभी YouTube से देखता हूँ। Let me tell you very frankly, I'm going to make videos on yoga and asanas. Okay, so wait for that. Then I have this small book. मैं ये भी, इनफैक्ट ये मेरे बेटे ने लाया था जब छोटा था बच्चा था, बट इसको भी मैं पढ़ा हूँ। छोटी सी किताब है, प्रहलाद महाराज की दिव्य उपदेश, ये भी मैंने पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर ये रामायण और ये है उपनिषद बाय सी राजगोपालचारी। My younger brother had advised me to buy these books because he said राजगोपालचारी साहब का बहुत ही अच्छी किताब है ये, और बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है। One thing I will tell you, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज थोड़ा मास्टरी करनी चाहिए। जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू कलेक्ट गुड वोकेबुलरी। Okay, so that's one of the reason I'm advising you to read different books. और ये एक छोटे छोटे किताब हैं, मेडिटेशन के ऊपर है, कैसे मेडिटेशन करते हैं आप योगा कैसे शुरू करेंगे, मेडिटेशन कैसे शुरू करेंगे। और जो नहीं कर पाते, मैं योगा के वीडियो में बताऊंगा कि जो नहीं हो पाता है ना, चंचल मन रहता है, उसको कहाँ से कैसे शुरू करना है, सब लोग कर सकते हैं उसको। एंड देन दिस इज Consciousness, the Missing Link. This book is all about, even if we are a human being and we know there is Almighty, कहीं तो एक लिंक मिस हो जाता है, और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो मिसिंग लिंक कहाँ पर है, और उसके बाद फिर अपने आप को आप जोड़ सकते हैं उनके साथ। And then I have another book is, A Second Chance. It is all about a story about a सिनर, एक अजामिल करके एक
दुष्ट व्यक्ति था, वो हमेशा गलत काम करता था। तो जब वो जब उसके मरने का टाइम आ गया, वो बीमार था, तभी यमदूत आके पहुंच गए। बट उनको देख के ना डर गया, और डर के वहाँ भी उसके बच्चे का नाम चिल्लाने लगा कि ए इधर आ जाओ, मुझे बचाओ करके। तो उसका बच्चे का नाम भगवान के नाम पे था। सो देखिए, जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, भगवान के जो विष्णुदूत हैं वो आ गए, एंड देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यमदूत एंड विष्णुदूत। उसी के बारे में लिखा गया है। सो इसका मतलब ये कहता है कि आप कितना भी गलत काम कर लो, अगर भगवान का नाम बाद में ले लेते हो, बहुत अच्छा होता है, भगवान आपके पास आ जाते हैं। एंड देन देयर इज अ बुक ऑन दिस रेवल्यूशंस, Judaism, Vedas, Islam, and Christianity. I just wanted to read, just to check the links between all these things. So this is written by an international, ISKCON की जो devotees हैं, American एक engineer है, उन्होंने उसको लिखा है, and the vocabulary, the words used in this are a little bit tough, and I needed a dictionary for this, or even Google for that. Here is a book from Why I Am a Hindu, and by Dr. Shashi Tharoor. I have not started reading it. I just collected. I'll definitely go through that. Again, there is a book from ISKCON. It's ये बच्चे लोगों के लिए भी है। इसमें लिखा गया है कि क्यों हम भगवान को माने, भगवान है या नहीं, ये सारे। So that's undoubted your doubts. ये मेरे ख्याल से ये मेरा बेटे लेके आया था वहीं से, ISKCON के मंदिर से, छोटे छोटे, ये सारे छोटे छोटे बुक हैं, और इसमें इतनी अच्छी तरह से वर्णना किया गया है बहुत कुछ। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाना। और इसमें सब छोटे छोटे पिक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन किया गया है। सो इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली गुड बुक। मैं सभी बच्चों को बोलूँगा, ये कभी बुक आप पढ़ो, ठीक है। Then comes little bit high level, so spiritual experiences by Swami Vivekananda. ये किताब मुझे मेरे लेट फादर इन लॉ ने दिया था, और he was an senior OS officer in Odisha government. So ये बुक उन्होंने मुझे दिया था, और उसके साथ साथ कुछ और बुक भी उन्होंने मुझे दिया था। ये है आपका कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो ऐसे 5 बुक है मेरे पास। ये दिस इज वॉल्यूम 1, दिस इज वॉल्यूम 3, एंड दिस वन इज वॉल्यूम 4. So it has 5 volumes. I think next time whenever I'll go to Belur Math in Calcutta, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, वहीं से ये किताब मिलती है। सो जो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 5 मिसिंग है, ये किताबें सारी ज़िंदगी के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम अपने देश, अपने कल्चर को नहीं जाना, बाहर जान के क्या करना है हमको, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने देश और अपने कल्चर को जानना चाहिए, क्या है क्या नहीं है करके। उसके बाद एक ये किताब है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, एक ओमकार सतनाम। ये मेरे यंगर ब्रदर जो हैं, he has collected so many books on spiritual, because he is a PhD in civil engineering, and but he's also PhD in philosophy kind of. He said, ये किताब आप पढ़ लेना, even if it is people talk about Osho, Rajneesh, but it is all about how Osho has explained Guru Nanak ji की गुरुवाणी को कैसे explain उन्होंने किया है. So my brother always used to say me कि why don't you be like the sun god? क्या करते हैं सूर्य देवता क्या करते हैं? He sucks up all the water, keeping the body substances. So सारी किताब पढ़ने के बाद क्यों नहीं उनके जैसे हो सकता है? मैंने बोला नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना भी नहीं हूँ इंटेलिजेंट और ये है। और जैसे पीछे हमारे जगन्नाथ जी की
है मूर्ति। तो हमारे वहाँ पर जगन्नाथ साहित्य के ऊपर बहुत बड़े किताबें हैं और बहुत कुछ ग्रंथ है जिसको कह सकते हैं आप। मैंने उनकी ट्राई नहीं किया हूँ क्योंकि मैं छोटी छोटी किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया उसको, इसलिए कि उसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन और एक अलग दिमाग की ज़रूरत होती है, और वो 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 इतना भी मुझ में नहीं है, बिकॉज जस्ट लाइक आई टोल्ड यू आई एम ए मल्टी टास्कर काइंड ऑफ थिंग। सो उसी के लिए कमिंग बैक टू अगेन, these are 3 books from Sadhguru, and this one is on Adiyogi, the source of yoga, because I do yoga, I do meditation, so ये उन्हीं के ऊपर किताब है। और एक उनके जो छोटे छोटे सेइंग्स हैं, उनकी जो कहानी वो जो कहते हैं, उसी से एक कलेक्शन है इनका। इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है, बताया है। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई लाइक सदगुरु इज वन ऑफ द रीजन इज ही टॉक्स अ वेरी नाइस इंग्लिश। मैं बहुत प्यार से सुनता रहता हूँ उनकी जो बातें करते हैं, उनकी वॉइस बहुत अच्छा है और बहुत कुछ अच्छे कहते हैं वो। और उनकी जो इंग्लिश है, उस इंग्लिश को अगर आप सुन लिया तो बहुत ही अच्छी तरह से आप, इवन इफ 10% यू फॉलो, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड देन दिस वन इज न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, इट्स एन इनर इंजीनियरिंग। सो इनर इंजीनियरिंग क्या है वो उन्होंने उसमें बताया है कि जैसे कहते हैं ना कि नाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, but we cannot control it. So when you cannot control the outside circumstances, it's a chance for you to work on yourself. अपने ऊपर काम करना, और अपने ऊपर काम करने से आप बहुत कुछ बदल सकते हो। अपने आप को बदल सकते हो, अपने परिस्थिति को बदल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मन बदल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। So he has written that when you cannot control the outside circumstances, why don't you work on your inner circumstances, on your inner engineering? वही है वो सब। ये वो इंजीनियरिंग नहीं है जो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर है, वो नहीं है। इनर इंजीनियरिंग जो है आत्मा या फिर सुप्रीम सोल जो है, परमात्मा, आत्मा और मन, बुद्धि, जो भी ये सब चीज़ें, क्यों ना इनके ऊपर हम काम करके अपने आप को बदल सकें, ये उन्हीं के ऊपर है। ये सारे किताब जाने के बाद मेरे पास रह जाता है क्या क्या रह गया, ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया। ये है, ये सारी किताब है डॉक्टर देवदत्त पटनायक। मैं इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्यों इनकी बुक खरीदा, ये कौन है और क्यों मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ये सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। In fact, tomorrow I'll do it. So I'll release a video on this, especially on Dr. Devdutt Patnaik. He's a doctor. He's an MBBS, but he is now completely changed into mythological facts and all these things. And he is an eminent speaker. He goes to outside India and he speaks at the events of MNCs, and he goes to give the speeches in the university outside India. So I will release a video on, make a video on his books and later on. So okay, so these are my spiritual books. Keep watching this, and if you can at least read 1 or 2 books in your life, even if, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, गीता सबके घर में होगा। अगर गीता पाठ भी करोगे, उसमें से काफ़ी कुछ आप सीख सकते हो। हिंदी गीता ले लो, अपने लैंग्वेज की गीता ले लीजिए, या फिर इंग्लिश गीता ले लीजिए, जो भी लैंग्वेज में आपको है वो भगवत गीता है, उसी को अगर पढ़ोगे आप, और रामायण महाभारत तो आप लोग पढ़ रहे हो, बट गीता का जो महात्म्य है वो जो पढ़ने के बाद अपने आप में सुधारने का एक मौका मिलता है। ये सारा लाइफ के ऊपर, जीवन के ऊपर है,
और जैसे मैंने कहा था कि डॉक्टर बिंद्रा एक बार कहे थे कि MBA का मेन किताब है भगवत गीता. Okay, so wait for my next video. Thank you very much.